Anyhow, when it comes to radioactivity, the first and foremost important thing is we need to know what radioactive elements are. Okay? So when it comes to radioactivity, तो radioactive elements क्या होते हैं and how this starts. But whenever we're going to discuss about radioactivity or radioactive elements, always remember, it's purely nuclear phenomena. Nuclear phenomena means only the which particles are going to be involved. Nucleus में कौन से होते हैं? Proton, protons are electron, neutron, Protons and neutrons only. nucleus. Only nucleus. Electrons are not going to be involved. अब radioactive elements होते क्या हैं? We have heard about it, but होते क्या हैं? Radioactive elements वो होते हैं that emit radiations naturally. ठीक है, जो all the time radiations का emit कर रहे होते हैं. आपने fluorescent paint देखे हैं ना? ग्लो इन द डार्क क्या पेंट, सर? जी फ्लोरोसेंट पेंट सबने देखा हुआ जी है ना, जी जी अंधेरे के अंदर वो ग्लो कर रहे होते हैं ना, वो एमिट कर रहे जी होते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. इस तरह रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये भी एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वेज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं नेचुरली. वो एलिमेंट्स होते हैं विद एटॉमिक नंबर 82 एंड अबव. ओके. अब रीजन क्या है? वी नो कि हर एक मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा दे कैन नॉट होल्ड एनीथिंग मोर, विच मींस अप टिल 82, 82 पहला खैर रेडियोएक्टिव एलिमेंट आता है. अप टिल दैट a nucleus can hold the neutrons and protons, but 82 and above, at this point it's not possible for the nucleus to hold any more of the neutrons and the protons. Okay, let's say it's a balloon and it has enough air in it now. अब वो मजीद एयर उसके अंदर ऐड नहीं हो सकती है. So the proton and neutron starts fighting with each other to stay in the nucleus. Okay, and three types of emissions are emitted because of this, and they are alpha, beta, and gamma radiation. These are to the particles, and these are the radiations. Alpha particle is also known as helium nuclei. Beta particle is also known as electron, and gamma particle are basically electromagnetic radiation. Now we know what helium is. हमने एनर्जी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ. हीलियम क्या होता है? हीलियम के पास दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. वाई वी कॉलिंग इट अ न्यूक्लियाई? अल्फा पार्टिकल को क्यों हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं? इट इज ओनली गोइंग टू हैव अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. बट इट्स वेरी सिमिलर टू हीलियम. So alpha particle is also known as helium nuclei. Okay, I'm going to recap everything before going further. हमने बात की जी न्यूक्लियस की, रेडिएक्टिव मटेरियल्स की. हमने कहा कि रेडिएक्टिव मटेरियल्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 एंड अबव का होता है. Radioactivity is purely a nuclear phenomena. And why is that? Because these radioactive elements cannot hold any more proton and neutrons. Because of this interaction of proton and neutron and the जो है fight to stay in the nucleus, we get three emissions: alpha, beta, and gamma. When these particles are emitted, nucleus move towards the stable point. ठीक है, जितनी ज्यादा ये रेडिएशन, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल निकल गया, न्यूक्लियर विल बी स्टेबल देन द ओरिजिनल वन. देन अगेन एमिशन होगी, फिर स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, एंड दे वुड कम अ पॉइंट व्हेन इट्स कंप्लीटली स्टेबल. ठीक है, अब हमें पता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन का नाम देते हैं. क्या नाम देंगे? ट्रांसमिटेशन. Transmutation,
whenever a particle is emitted, it would turn into a new element, let's say A, then it will turn into a new element, then into C and D, until it becomes a neutral atom. अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका फर्दर ऑन मतलब क्या होता है। रेडियोएक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया? जी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जी क्या होते हैं? डू एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? जी एलिमेंट्स विद यस 82 एंड अबव। क्यों होता है? अबव It's pure nuclear phenomena, and it the nucleus cannot hold any more electron or proton. Okay? न्यूट्रॉन अब जब रेडिएशंस की बात होती है, हमें सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करनी होती है। मैंने कहा पहले रेडियोएक्टिविटी समझ लो। इस फिनोमेना को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, एंड द मटेरियल्स आर नोन एज रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैकग्राउंड रेडिएशन। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस एज द नेम इंडिकेट, व्हाट कम्स टू योर माइंड? सर दोबारा मतलब जो बैकग्राउंड समझ नहीं रेडिएशन आई। मेन नहीं क्या होती, माइंड में आ रहा है? सेकेंडरी। एनीथिंग? सेकेंडरी मतलब मेन नहीं। जब रेडिएशन का बैकग्राउंड का लेवल कम मतलब हो। क्या होता है? बिहाइंड दिस। बिहाइंड। ठीक है। एंड रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन which exist in our background, in our atmosphere, without any radioactive material present. ठीक है। अब रेडिएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है, अब उसकी वजह से रेडिएशन हो, वो तो एक अलग बात होती है। बट हमारे बैकग्राउंड में वैसे भी रेडिएशंस जो है वो क्या कर रही होती हैं? एग्जिस्ट कर रही होती हैं ऑल द टाइम, एंड दोज रेडिएशंस आर नोन एज, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वो है ना, क्या कहते हैं, पोल्यूशन है। अब उसके रिसोर्सेज तो हम खुद है ना। ट्रांसरेडिएशन। जी। इस तरह हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें रेडिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है? बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। अब बैकग्राउंड रेडिएशन का ऑब्वियसली टू रिसोर्सेज हैं, एक हमारे पास आर्टिफिशियल रिसोर्स होगा और एक नेचुरल रिसोर्स होगा। ओके। ओके। अब नेचुरल रिसोर्स में हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेयर आएगा, कॉस्मिक रेज आएंगी, हमारे पास मटेरियल आएगा, सॉरी ग्राउंड आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में मेन जो रेडिएशन का कॉज है वो है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस कैसे फॉर्म होती है? जब रेडिएक्टिव एलिमेंट डिके हो होके इट कन्वर्ट्स टू रेडॉन गैस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली रेडॉन गैस एक्ट्स एज अ बैकग्राउंड रेडिएशन। बाकी कॉस्मिक रेज भी होती हैं हमारे पास, स्पेस से भी कुछ ऐसी रेज आती हैं विच हैव अ रेडिएक्टिव इम्पैक्ट हमारे पास होता है। उसके अंदर हमारे पास जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज कुड इंटर, ये तमाम चीजें हमारे पास होती हैं। सो इन रेडिएशंस के अंदर हमारे पास, अब अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग का मटेरियल कहाँ से आता है? बर्निंग। बेसिक बिल्डिंग मटेरियल हमारा आयरन एंड एवरीथिंग, इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड ना। और ग्राउंड में हमारे पास रेडिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उसकी वजह से एक्सपोजर टू दैट ये भी एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, there are two terms known as contamination and irradiation. Contamination का मतलब ये होता है when you swallow or something is inside दैट your इज body. नॉट हार्मफुल। ठीक है। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है कि when you eat or swallow something which something is inside you, रेडिएक्टिव टर्म्स के अंदर। ठीक है। और इरिडिएशन का मतलब ये होता है कि एक्सपोजर टू रेडिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब अगर आप तो मतलब जो ग्राउंड आपको की, हार्म कर सके। सॉरी, हार्म तो दोनों ही करते हैं, इरिडिएशन से भी होता है, कंटामिनेशन से भी होता है हमारे पास। कंटामिनेशन का बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव swallowed a pill or anything like that, something that we have taken inside our body and something we are only exposed to, जैसे सनलाइट से हम एक्सपोज हो रहे हैं, उसको इरिडिएशन का नाम दिया मतलब जाएगा। बट अगर हमने कुछ खा जो लिया अंदर नहीं है, जाता। हाँ कुछ खा लिया है, समथिंग हैज बीन बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी,
उसको कंटामिनेशन का नाम दिया जाए। ठीक है। सो Okay. एटमोस्फेयर में रेडॉन गैस कहां से आती है? रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के डिके की वजह से इट सीप्स थ्रू द ग्राउंड एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। बिल्डिंग का मटेरियल सब ग्राउंड से आता है। ग्राउंड मेनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हमारे ग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक्सपोज होते हैं, तो वो भी आता है। फूड भी हमारा ग्राउंड से आता है, तो वो भी एक्सपोज होते हैं। इस वजह से हम लोगों को रेडिएशन के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। ये देखो, रेडियोएक्टिव गैस रेडॉन होती है विच सीप्स थ्रू द अर्थ सरफेस ड्यू टू द डिके ऑफ द मटेरियल हमारे पास आता है। हम बिल्डिंग्स जिनमें रहते हैं, ग्राउंड जो है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल कंटेन्स करते हैं, तो अगर वहां पे कोई भी चीज होती है तो उसमें समहाउ इट दे बिकम द पार्ट। फूड एंड ड्रिंक स्लाइटली रेडियोएक्टिव होते हैं हमारे पास। ये तमाम चीजें स्पेस से जो हमारे पास आ रही है उसमें कॉस्मिक रेज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे पास कमिंग फ्रॉम द सन। कॉस्मिक रेज उनको बोलते हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, स्पेस से जो आ रही होती है। ठीक है। नॉर्मली उनको स्टॉप कौन करता था? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अब हमारे पास अगर डिप्लीट हो रही है तो दे एंटर द एटमोस्फेयर विच इज डेंजरस फॉर अस। और यहाँ पे अगेन डिस्कस किया हुआ है, बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन होती है दैट एग्जिस्ट अराउंड अस इवन इफ नो रेडियोएक्टिव मटेरियल इज प्रेजेंट अराउंड अस। तो ये चार मेन रिसोर्सेज हैं: एटमोस्फेयर, बिल्डिंग्स, फूड, और चौथा क्या था? कॉस्मिक रेज। कौन? इससे हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही होती है। और डेफिनेटली आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो है वी आर एक्सपोज टू रेडिएशन, तो उसमें भी हमारे पास आता है। अब इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो हम काउंटर यूज करते हैं उसको गीगर मोलर काउंटर का नाम दिया जाता है। ठीक है। गीगर काउंटर, इसको हम ऑन करते हैं और विदाउट एनी रिएक्टिव मटेरियल इसको ऑन रखते हैं। इफ वी गेट सम रीडिंग्स दैट शोज कि वो हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड रेडिएशन। और उस रीडिंग को क्या नाम दिया जाता है? काउंट रेट का नाम दिया जाता है। काउंट्स पर मिनट में भी हो सकता है, वो काउंट्स पर सेकंड में भी हो सकता है। ओके। आर वी क्लियर? गीगामोलर काउंट रेट एंड एवरीथिंग के बाद अब हम लोग वी आर गोइंग टू एंटर द सेक्शन जहां हम रेडियोएक्टिव डिके के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड हमें एक पॉइंट याद रखने की, रेडियोएक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमेना। ठीक है। रेडियोएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सॉरी रैंडम मीनिंग का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वी नो कि वी हैव 10 न्यूक्लियसेस। I know that our nucleus is going to decay in exactly 2 seconds, but which nucleus is going to decay, I cannot predict for sure. That means a random process. ठीक है कि I know in exactly 2 seconds the radioactive is going, the nucleus is going to decay, but which nucleus is going to decay, I cannot predict for sure. Such a processes are known as random process. And the decay of the nucleus is obviously known as the radioactive decay. ठीक है। Do we understand the meaning of it? नहीं, मैंने नहीं लिखा। There comes questions like these बहुत दफा कि where they're going to ask you what is the meaning radioactivity, radioactive process को discuss करें। The first thing that we need to keep in our mind is that radioactivity is a random process. Random. And random का meaning क्या है कि which nucleus is going to decay, Cannot be we predicted. cannot predict for sure. It's going to decay within 2 seconds. And why I'm using the word 2 seconds कि हमने आगे जाके half life को discuss करना है. That is the time in which times vary for every nucleus, but it's fixed. उसमें कौन सा nucleus decay होगा, we cannot predict that for sure. जैसे रेडियो एक्टिव डिके बस जब न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज करता है स्टेबल बनने के लिए। Hmm. नॉर्मल Yeah. रेडिएशन भी ऐसे नहीं होते? Normal radiations होती नहीं है ना. हाँ, ओके। There are a certain types of materials which do so. They are going to stabilize themselves by emitting those radiations. ठीक है। अब रेडिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा
is basically also known as helium nuclei. It has 2 protons and 2 neutrons. Beta particle is considered as electron. It has like a negative charge, and gamma are basically, अब आगे इनकी properties आती हैं which you need to remember. अभी फिलहाल यहाँ तक तमाम चीजें आती हैं हमारे पास. अच्छा, देर मैं एक क्वेश्चन को अभी एड्रेस कर देता हूँ. हाउ बीटा पार्टिकल इज बीइंग एमिटेड. ठीक है, सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट के जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियस में हमने क्या कहा है, इट्स प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना. ऐसा ही है. जी. न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब क्या है कि ओनली द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शन. ऐसा ही है. जी. अब अगर ओनली द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है? एनी रिव्यूज ऑन दैट? इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है न्यूक्लियस में, तो ये निकला कैसे? नहीं सर, नहीं पता. Our genius Ayan, would you like to answer? नहीं पता. Okay. We have proton and neutron, right? एंड आज तक हम ये बात करते हुए आए कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है. जी. ऐसा ही है. जी. अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इट मींस इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, जी. तभी तो वो न्यूट्रल है. जी. So beta particle is emitted when a neutron breaks into a proton and electron. Electron as beta particle comes out of the nucleus and proton stays in the nucleus. Okay? Okay. So whenever an alpha particle is going to emit, we have studied about atomic mass and atomic number, right? Atomic number को कैसे represent करते हैं? Z से. वो किसको show कर रहा होता है? Number of proton और electrons को. ठीक है, इसको चार्ज नंबर भी कहते थे, प्रोटॉन नंबर भी कहते थे. और एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, हम ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास, और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर. अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. बीटा पार्टिकल कैसे होगा? 0 and -1. अब 0 क्यों है? इसका इसका मास जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 0 होता है. तो व्हेन बीटा पार्टिकल इज गोइंग टू एमिट, हमारे पास मास में कोई चेंज नहीं आएगा. द चार्ज इज गोइंग टू बी -1. और जब गामा रेडिएशन एमिट होगी तो हमारे पास ना मास में चेंज आएगा ना ही चार्ज में कोई चेंज आएगा. ठीक है. एक और पॉइंट, अल्फा एंड गामा साथ रेडी एमिट हो सकते हैं, बीटा एंड गामा साथ में एमिट हो सकते हैं, बट अल्फा एंड बीटा गामा, alpha and beta cannot be emitted at the same time. Okay? Even if nothing is emitted, तो gamma radiation emit होंगी. Alpha and beta together cannot be emitted at the same time. Because we have discussed कि alpha particles कब emit होते हैं? जब proton gets knocked out of the nucleus. Beta particle कब emit होते हैं? When neutron gets knocked out of the nucleus. And when no one gets win the game, तो क्या emit होंगी हमारे पास? Simply gamma radiation. क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इंटरेक्ट तो किया है ना आपस में. तो कीपिंग दैट इन व्यू, सबसे ज्यादा मास और सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? अल्फा. अल्फा पार्टिकल के पास 2 protons and 2 neutrons, which means it's going to be the heaviest of all. Then बीटा, एंड लास्ट में कौन आएगा? गैमा आएगा. तो अगर गैमा में इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, प्रोटॉन भी नहीं होता, तो फिर एमिट दे होता आर क्या? जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे एक्सरेज हैं, गामा रेडिएशन हैं. हमने जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था ना, वो सब कुछ. जी. ओके हो गया? जी सर. अच्छा, this you need to
अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, do we recall the point of ionization energy and penetrating ionization energy का पता है हमें क्या होता है? Ionization power. Energy needed to ionize. To knock out the nucleus from the outermost मतलब nucleus. मतलब जब वेवलेंथ नहीं, 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 फ्रीक्वेंसी नहीं, हाई नहीं, होती है तो फिर नहीं, उसमें नहीं, नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में क्या होती थी? Ionization energy was the energy required to remove the electron from the outermost orbit. ठीक है। आप सबसे ज्यादा चार्ज चूंकि अल्फा पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी भी उसके पास होगी, देन बीटा के पास, और जो गामा पार्टिकल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जीरो। ठीक है। फिर एक आयनाइजेशन पावर होती है और एक पेनिट्रेटिंग पावर होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? हाउ डीप यू कैन गो इनटू सम मटेरियल। So if alpha particle is the massive of all, तो उसकी पेनिट्रेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? लीस्ट होगी, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ पे यूज कर रहा है? टू आयनाइज वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ। और पेनिट्रेटिव पावर अब सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की, क्योंकि उसके पास गामा की। गामा। आयनाइजेशन पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, हाँ so it can go deeper into some materials. The only energy he's utilizing is to penetrate into some material. So ionization power versus penetrative power. Do we understand why do they vary? जी। सर इसीलिए वो एक्सरेज में भी एक्सरेज मसल्स को पेनिट्रेट करके जी, बोन्स का करते हैं। जी, जी। बोन्स तैयार, क्या बोला है? बोन्स नहीं तैयार करती हैं एक्सरेज, वो उसका सिर्फ इमेज देती नहीं, हैं। बोन्स का शैडो। हाँ, शेडो देती हैं भाई, तैयार करना है समथिंग एल्स, कि मैन्युफैक्चरिंग में एक्सरेज तुम यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है। So were you clear about the penetrative and the ionizing power? तो जो अल्फा जी। पार्टिकल है, it could easily be stopped by just a piece of paper. Aluminium is used to stop the beta particles, and lead, only gamma particles could penetrate a bit into the lead particle, but lead is again so dense, so वो it's used to stop the gamma radiations. तो कौन कितना मटेरियल ट्रेवल कर सकता है इनटू द एयर? तो अल्फा पार्टिकल कुड ट्रेवल अबाउट 5 centimeter into air before they get absorbed, and beta particles can travel easily through the paper, but they are absorbed by a few millimeters of metal such as aluminum, and gamma radiations है few centimeter dense material like lead में जा सकते हैं। which means जब भी हमें radioactive materials को स्टोर करना है या ट्रांसफर करना है, we are going to transfer them in lead packagings, क्योंकि they could stop any types of radiation from coming out। ठीक है। और रेडिएक्टिव मटेरियल्स को कभी भी हम डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, बिकॉज उससे इरिडिएशन से our skin could get damaged, DNA cells mutate हो सकते हैं, and so many things could occur। Okay? जी।